students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 6 of your class 6 in computers, that is animating text and objects in PowerPoint. How can you animate the text? कि आप moving text कैसे बना सकते हो एक PowerPoint में? So you know what is the meaning of animation? That means moving the picture or moving the text. So ये किस में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग वीडियोस, इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्रेजेंटेशन, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फिल्म्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एडवर्टाइजमेंट. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will read about animating text and objects. आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को और टेक्स्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हो. सेकेंड इज एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू द प्रेजेंटेशन. आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हो प्रेजेंटेशंस में. थर्ड इज इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स. हाउ कैन यू इंसर्ट द वीडियो क्लिप्स. Then next is using action buttons. How can you use the action buttons? And the last one is importing data from Word. How can you import the data from your Word? Now, computer animation is also known as digital animations. Computer animations को हम क्या कहते हैं? Digital animations कहते हैं. Computer animations also known as digital animations. From digital animation कहते हैं it is a branch of computer generated imagery. वो हमारी CGI की ब्रांच होती है, दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस. जो आप एक एक इमेज को, सिंगल सी इमेज को आप एक मूवी 3D मूविंग इमेजेस बना सकते हो. नाउ इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ फिल्म्स इंक्लूडिंग दैट फिल्म, वीडियो गेम्स, सिमुलेशन, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा. नाउ एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स. हाउ कैन यू एनिमेट द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को कैसे एनिमेट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट्स को. For animated text and objects, follow these steps. Step 1. In your presentation, choose the object you want to animate. आपको उसे choose करना है जो object आपको animate करना है. Step 2. In animations, tab in advanced animation. जो एक animation का option होता है वो आपको किस पे tap करना है? Advanced animations पे tap करना है. Advanced animation group, click on add animation. You will see a drop down menu. आपको क्या दिखेगा? ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा. फॉलोइंग 4 टाइप्स. कितने टाइप्स का होगा? 4 टाइप्स का होगा एनिमेशन इफेक्ट्स. यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप. आपको 4 टाइप्स में से कोई से भी एक को आप चूज कर सकते हो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट इज एंट्रेंस. द आइकन फॉर दिस टाइप ऑफ एनिमेशंस आर कलर्ड ग्रीन. किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के होते हैं. डिसाइड हाउ एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द प्रेजेंटेशन. के एक ऑब्जेक्ट कैसे एंटर करेगा एक प्रेजेंटेशन में. यू कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लाई. सिंपल से ऑब्जेक्ट का फ्लाई करता हुआ बना सकते हो, बाउंस करता हुआ एक्सेट्रा. नाउ एग्जिट. हाउ कैन यू एग्जिट. The icons for this type of animations are colored red. आपको रेड कलर के आइकन्स मिलेंगे. Decide how an object exists during the slide show. कि ऑब्जेक्ट कैसे एग्जिट करेगा स्लाइड शो के ड्यूरेशन में. You can also you can also choose the effect like fly out or fade, etc. Now, impresses. The icons for this type of animations are colored yellow. वो yellow color के होते हैं. Decides how an object will be seen on the slide. कि एक object कैसा दिखेगा slide पे. That is, it can make the objects grow or decrease in size, change its color, etc. Now, motion paths. What are the motion paths? ये वो कैसे move करेगा. The effects can be used to move an object, move from one place to another or along a path during the slideshow. We can also apply many of the multiple effects to an object. First one, place your mouse on an animation effect to preview it. आप place कर सकते हो mouse को कहाँ पे एक animation effect को दिखाने के लिए. Step 2, select the animation effect. आपको किस पे select करना है? Animation effect पे select करना है. You like from the menu. जो आप like करते हो, जो आपको पसंद है मेन्यू में से. Also a number will appear. नंबर आपका appear होगा near the object on the slide pane. Applying animation. Step 3, duration fields of the timings. Duration fields of the timing groups can be used to set times. वो timing set करने में use होता है. For effects, delay box can be used to set delay time कि कितनी देर तक delay रहे before animation. Now, play button is the animation pane. Play button क्या होता है? Animation pane होता है. Can preview the effects applied. जो preview कर सकता है आपके effects जो applied होता है to the slide.
द रीऑर्डर बटन क्या होता है? कैन बी यूज टू मॉडिफाई करने में यूज होता है द ऑर्डर in which effects occur. Now how to add animation. Now how to add animations to PowerPoint in simple 2 steps. Now step 1. Click on the object you want to animate. आपको click करना है उस object पे जो आपको animate करना है. In the example we will use the word computer. अब word को use करो, that is computer. Step 2. Select the animations you want to use. फिर उसी animation को select करना है आपको जो use करनी है, like shown in this picture. For this example we use the entrance animation. जैसे हमने किसको यूज कर लिया? entrance animation को यूज कर लिया, that is fade animation. We set the duration. कितना टाइम लगाया हमने? 2.75 seconds का लगाया. You will notice in the screenshot on the previous page that the fade animation has no effect option. कि जो हमारा previous page में जो fade animation था उसमें कोई effect option था ही नहीं. The button is grayed out. बटन कैसा होगा? ग्रे कलर का हो जाएगा वहाँ पे. Here what does number in the screenshot mean? जो नंबर होता है ना screenshot में क्या मीनिंग होता है उसका? Step 1 we choose the fade animation. हमने किसको चूज करा? fade animation को चूज करा. Step 2 there are no effect options. कोई भी effect options नहीं होते. fade animation the button is grayed out. जो button होता है grayed out होता है and clickable and not clickable. Step 3 you can adjust setting. आप adjust कर सकते हो settings को via advanced animations, timings and animation pane section. Now move to the next page. Step 4. The number 1. Before number जो 1 होता है किससे refer करता है? To the fact that we have added and one animations to our object. कि 1 number means we have added 1 animation to our object. Step 5. You can click on preview button. आप preview button पे click करोगे तो आपने जो animation की जो editing करी है वो आपको show हो जाएगी. It looks like this. Now, adding transition effects to presentation. Now, adding transition effects to presentation. How can you edit the transition effects to your presentation? The effects that appears when we change. जो effect appear होता है जब हम change करते हैं from one slide to another slide called transition. एक slide से जो दूसरी slide वो change होता है that are known as transition effect. Such effects can be applied to one slide or all slide. इसको हम एक स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सारी स्लाइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. टू एड ट्रांजिशन इफेक्ट्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो. स्टेप 1 चूज द डिजायर्ड स्लाइड. आप एक डिजायर्ड स्लाइड को चूज करना एंड क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब्स. स्टेप 2 यू विल सी ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड. आपको ट्रांजिशंस दिखेंगे स्लाइड में. ग्रुप ऑन द रिबन. स्टेप 3 क्लिक मोर एंड चूज अ ट्रांजिशन इफेक्ट. आपको मोर पे क्लिक करना है, चूज करना है किसको? ट्रांजिशन इफेक्ट को फ्रॉम द ऑप्शंस टू सी द करेक्ट स्लाइड टू प्रीव्यू द चूजन इफेक्ट. स्टेप 4 द ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप. जो ट्रांजिशन होता है स्लाइड ग्रुप में चूज द इफेक्ट ऑप्शंस. आपको इफेक्ट ऑप्शंस पे चूज करना है टू चूज एन इफेक्ट फॉर द चूजन ट्रांजिशन. फ्रॉम हेयर यू कैन चूज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. आप वर्टिकल या फिर horizontal transition effect को choose कर सकते हो. Now in the sound of step 5 in the sound options of timing groups choose any sound effect. कोई भी sound effect को choose कर सकते हो. Here जैसे breeze हो गया, कोई भी sound effect हो सकता है and click on preview to hear the sound. फिर आप preview पे click करोगे and you can hear that sound. Step 6 in the duration box of the timing group enter the transition timing. आपको transition का timing enter कर सकते हो. Here 15 you can enter like this 15. For check on the mouse click. आप कर्सर पे फिर क्या करना है आपको क्या चेक करने के लिए क्या करना है? माउस पे क्लिक करना है. चेक बॉक्स if you want to switch to the next slide on mouse click. Now move to the next page. Here step 7 check the after check box. आपको after check box को चेक करना. इफ यू वांट योर स्लाइड टू मूव टू द नेक्स्ट ऑटोमेटिकली. अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड नेक्स्ट पे मूव करती रहे. स्टेप 8 इफ यू वांट योर इफेक्ट्स टू अप्लाई टू ऑल साइड्स. अगर आप चाहते हो कि आपका इफेक्ट अप्लाई हो साइड्स पे क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल. आप सारे अप्लाई टू ऑल ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो. नाउ स्टेप 9 इन द स्लाइड शो. जो स्लाइड शो है टैब, जो स्लाइड शो का टैब है लाइक हियर क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनिंग. आपको कहाँ से क्लिक करना है? बिगनिंग से क्लिक करना है टू व्यू ऑल योर स्लाइड्स विद द अप्लाइड इफेक्ट. तो आपके जो स्लाइड आपने इफेक्ट्स अप्लाई करे हैं
आपको सारी स्लाइड्स पे दिखने लगेंगे. Now inserting sound clips. How can you insert the sound clips? That is very interesting part. Adding sounds can increase the appeal of any presentation. आपकी presentation के appeal को अच्छे से increase कर सकता है in PowerPoint. You can add sound from your computer, your own voice or a CD. आप अपनी voice भी add कर सकते हो या फिर किसी CD से add कर सकते हो. To add from a file, follow the given step. अगर आपकी files में वो साउंड पड़ी है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप 1, चूज द डिजायर्ड स्लाइड एंड क्लिक ऑन ऑडियो. आपको डिजायर्ड स्लाइड को चूज करना है. किस पे क्लिक करना है? ऑडियो पे. मेन्यू, द मीडिया ग्रुप्स ऑफ द इंसर्ट टैब. किस पे क्लिक करना है? मीडिया ग्रुप्स पे इंसर्ट टैब के एक डायलॉग बॉक्स वहां पे अपीयर हो जाएगा. स्टेप 2, चूज द रिक्वायर्ड फाइल. आपको क्या करना है? चूज करना है रिक्वायर्ड फाइल को. फ्रॉम द डिजायर्ड लोकेशन क्लिक ऑन इंसर्ट. फिर आपको क्लिक करना है उस पर. अगर आपने सेलेक्ट कर लिया देन यू हैव टू क्लिक इंसर्ट. नाउ स्टेप 3, नाउ स्पीकर आइकन. एक स्पीकर आइकन दिखेगा विल अपीयर ऑन द स्लाइड. टू टैब फॉर्मेट्स एंड प्लेबैक विल ऑल्सो अपीयर अंडर द ऑडियो टूल्स. कहाँ पे अपीयर होगा? आपके यहाँ पे ऑडियो टूल्स के नीचे अपीयर होगा. टैब ऑन द रिबन. स्टेप 4, चूज इधर ऑटोमेटिकली और ऑन क्लिक. अगर आप ऑटोमेटिकली पे करोगे अपने आप साउंड आने लगेगी, या फिर क्लिक करने पे चूज करोगे तो आप क्लिक करोगे तभी आएगी. द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द स्टार्ट फील्ड इन द प्लेबैक टैब. जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है स्टार्ट फील्ड में प्लेबैक टैब में, वहां पे चूज कर सकते हो. स्टेप 5, इफ यू ऑटोमेटिकली ऑप्शन इज चूज. अगर आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन को चूज करोगे, साउंड विल स्टार्ट automatically at the slide appears and on click is chosen. Sound will start when you click. Sound कब start होगी? जब आप click करोगे. Step 6, click to the speaker icon. आपको किस पे click करना है? Speaker icon पे to play the sound. Now for inserting your own sound. अगर आपको अपनी वो किसी sound को insert करना है, what can you do? Follow the given steps. Step 1, select the slide. आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना है. go to the insert tab. then again आपको insert tab जाना है. click on audio arrow है ना, उस पर क्लिक करना है. of media group in the insert tab. जो media group है वहाँ पे क्लिक करना है. step 2, select the record. किसको सिलेक्ट करना है? रिकॉर्ड पे सिलेक्ट करना है. रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन एंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपको डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा. दैट इज रिकॉर्ड ऑडियो हियर. नाउ स्टेप 3, क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन. आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ऑडियो. यू हैव स्पीक. जो भी आप बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा. क्लिक ऑन स्टॉप. फिर आप क्लिक कर दोगे स्टॉप पे. व्हेन यू आर डन एंड प्ले टू लिसन. आप उसे फिर से सुन सकते हो. क्लिक ओके इफ यू आप ओके पे क्लिक करो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द रिकॉर्डिंग. स्टेप 4, once the audio file is inserted. जब एक ऑडियो फाइल इंसर्ट होती है, ऑडियो क्लिप appears on the slide. जो आपकी ऑडियो क्लिप्स होगी आपके स्लाइड पे आने लगेगी. Step 5, when you click on the audio clip icon, format and playback tabs appear. वहाँ पे क्या appear होगा? format और playback tabs appear होंगे. Note, the sound clips that you record are given the file extension. वो आपकी फाइल को एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा. दैट इज एक्सटेंशन या वेब. Now inserting video clips. How can you insert the video clips in our PPTs? Video clips can make your presentation more lively and appealing. आपकी presentation को बहुत lively और appealing बना सकती है to the audience. To insert and add a video clip to the presentation, follow the given steps. Step 1, go to the insert tab. आपको कहाँ पे जाना है? insert tab पे जाना है. choose video from the media group. आपको choose करनी है वीडियो कहाँ से? media group से. here. Now step 2, add an insert dialog box will appear on the screen. कहाँ पे appear होगा? आपकी screen पे appear होगा. Select the desired clip and click on insert. आप select कर लोगे desired clip पे और click कर दोगे उस पे insert पे. Now in the same way you may also add clip art videos. आप clip art videos भी add कर सकते हो to your slides. Step 4, you will observe that format and playback tabs appear whenever inserted video is clicked. वो क्या अपीयर होगा? फॉर्मेट और प्लेबैक टेक्स्ट अपीयर होगा जब भी आपकी कोई इंसर्टेड वीडियो पे क्लिक करोगे. नाउ स्टेप 5, द वीडियो कैन बी फॉर्मेटेड. जो आपकी वीडियो है वो फॉर्मेटेड हो जाएगी बाय गोइंग टू द फॉर्मेट टैब. अगर आप फॉर्मेट टैब पे जाओगे एंड चूजिंग फ्रॉम द मेनी ऑप्शंस गिवन. नाउ स्टेप 6,
क्लिक ऑन द वीडियो क्लिप एंड प्ले बटन। आपको किस पे क्लिक करना है? वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है। देन यू टू क्लिक ऑन द प्ले बटन, यू विल सी दैट द वीडियो स्टार्ट्स प्लेइंग। आपकी वीडियो अपने आप चलनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑल्सो द टाइमलाइन नियर द प्ले बटन स्टार्ट्स एडवांसिंग। जो टाइम होगा आपका प्ले बटन का स्टार्ट करने लगा एडवांसिंग। यू मे ऑल्सो क्लिक एनीवेयर। आप कहीं और भी क्लिक कर सकते हो ऑन द टाइमलाइन टू मूव दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। आप उस मूव, अगर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी चलना। Now using action buttons. In PowerPoint we can insert a link to web page. आप insert कर सकते हो link को web page पे, slide in same presentation, slide in another presentation, etc. by action buttons. Inbuilt buttons shape that can be changed to perform actions like a place, sound, redirect to another slide, etc. are called action buttons. इनको क्या कहते हैं? Action buttons कहते हैं। क्लिकिंग सच बटन्स विल कॉज द एक्शन टू अगर अगर आप क्लिक कर दोगे इन बटन्स पे तो क्या होगा? एक्शन कॉज करना स्टार्ट हो जाएगा। टू चूज एक्शन बटन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, ओपन एनी ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आपको अपनी कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना है। गो टू द इंसर्ट टैब, देन यू हैव टू गो टू योर इंसर्ट टैब लाइक हियर, देन गो टू द इलस्ट्रेशंस। आपको फिर इलस्ट्रेशंस पे जाना है। देन गो टू क्लिक ऑन द शेप ड्रॉप डाउन। जो शेप्स आएंगी यहाँ पे खुल के उन पे जाना है। चूज द एक्शन बटन यू वांट। कोई भी एक्शन बटन को चूज कर लेना जो आपको चाहिए। नाउ स्टेप 2, लुक लेट अस चूज द एक्शन बटन, प्ले ऑप्शंस। फिर हम क्या चूज करेंगे? एक्शन बटन देन प्ले ऑप्शंस। नाउ एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जो एक्शन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। विल अपीयर व्हेन द बटन इज रिलीज। जब आपका बटन आप उसको छोड़ दोगे आपकी एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, सेलेक्ट माउस क्लिक। अब क्या सेलेक्ट करना है? माउस क्लिक को सेलेक्ट करना है। इफ यू वांट द एक्शन टू बी परफॉर्म, अगर आप चाहते हो कि वो एक्शन परफॉर्म हो, when the is clicked, when action button is clicked or mouse over tab. If you want the action to be performed when mouse is hovered, when the action over the action button. Now step 5, go to the action on the click section. आपको कहाँ पे जाना है? एक्शन पे जाना है। कहाँ पे? क्लिक सेक्शन में। चूज हाइपरलिंक। आपको हाइपरलिंक को चूज करना है एंड देन क्लिक टू द ड्रॉप डाउन। फिर किस पे क्लिक करना है? ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। Arrow to choose any options from the menu that appear. Example, first slide, last slide, custom slide and show slide. It will appear over here. Now step 6, click the play sound. आपको किस पे क्लिक करना है? play sound पे क्लिक करना है। check box if sound should be played when action button is clicked. Now step 7, now start the slideshow. आपको क्या slide start करना है? एक slideshow को start करना है and click on hover over action button to see the actions. So importing data from world. How can you import the data from your world? PowerPoint allows you to import data from Word, Excel, etc. Import करने में हेल्प करता है, आपको अलाउ करता है import करने में। वर्ड से या फिर एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने में PowerPoint अलाउ कर देता है। Insert it into your presentation. You can insert that into your presentation to import data from Word. Follow the given steps. These are the steps you can follow. Step 1, open Microsoft Word. You can open the Microsoft Word. Go to the view. कहाँ पे जाना है आपको? View पे जाना है and click on the outline. Then click on the outline. View पे जाके किस पे क्लिक करना है? Outline पे क्लिक करना है। Button on in the view groups. Step 2, type some text in the given type some text as given in the image. आपको टाइप करना है कोई भी टेक्स्ट जो आपकी इमेज में given है like this. Step 3, select first point. आपको किसको select करना है? First point को select करना है to home to apply heading 1 from the styles group. Now step 4, choose second point. फिर आपको second point को choose करना है and apply heading 2. वहाँ पे आपको क्या डाल सकते हो? heading 2 डाल सकते हो. And step 5, choose third point and apply heading 3. थर्ड पॉइंट चूज करके आप क्या डाल सकते हो? वहाँ पे थर्ड हेडिंग डाल सकते हो। स्टेप 6, क्लिक सेव ऑन क्विक एक्सेस टूलबार। आपको सेव पे क्लिक करना है क्विक एक्सेस टूलबार में। यू विल सी दैट सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। वहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। राइट कंप्यूटर इन द स्पेस फॉर फाइल नेम एंड क्लोज MS वर्ड। वहाँ पे जो कंप्यूटर डाल दो फाइल नेम में और किसको फाइल नेम पे और क्लोज कर दो MS वर्ड को। नाउ स्टेप 7, नेक्स्ट
ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, आपको कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करनी है इन एमएस पावर पॉइंट, गो टू द व्यू, कहाँ जाना है, व्यू पे जाना है. नाउ व्यू टैब एंड सेलेक्ट द स्लाइड सॉर्टर बटन, फिर वहां पे आएगा एक स्लाइड सॉर्टर बटन को वहां पे सेलेक्ट करना है. स्टेप 8, गो टू द होम, यू हैव टू गो टू द होम टैब एंड चूज न्यू स्लाइड, वहां पे फिर आप क्या सेलेक्ट करोगे, न्यू स्लाइड्स को सेलेक्ट करोगे. चूज द स्लाइड फ्रॉम द आउटलाइन, आपको चूज करना है स्लाइड को कहाँ से, आउटलाइन से. ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स. स्टेप 9, लोकेट द प्लेस वेयर द वर्ल्ड फाइल कंप्यूटर से स्टोर, फिर आपको लोकेट करना है उस प्लेस पे जहाँ पे वो आपके वर्ल्ड की फाइल कंप्यूटर में स्टोर्ड है. नाउ स्टेप 10, चूज द फाइल्स एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, चूज करना है आपको फाइल पे, आपको किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है. स्टेप 11, यू विल सी दैट द न्यू स्लाइड्स विल गेट इंसर्टेड, जो आपकी न्यू स्लाइड्स हैं वो इंसर्ट हो जाती हैं in the style that you choose and apply. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.